हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का लाइव टेस्ट देने जा रहे हैं प्रैक्टिस मॉक पर। ये फ्री टेस्ट चल रहा है, आप भी इसे लगा सकते हैं। ठीक है, आज रात 10 बजे तक ही है ये, तो प्लीज़ इसे लगाइएगा और अपने स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आपको जैसे पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क का जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। तो डेट्स पहले क्या बताई गई थी कि 5, 6 या 11, 12 को होगा, तो मैं तो यही होप कर रहा था कि या 11 को हो या 12 को। लेकिन भाई साहब 5 तारीख, ठीक है, मतलब 5 जनवरी को, और पहली शिफ्ट में, पहले दिन पहली शिफ्ट में ही एग्ज़ाम आ गया। क्या ही कर सकते हैं। और जाना भी सुबह सुबह पड़ेगा, 7 बजे 8 बजे तो रिपोर्टिंग टाइम है। और ऊपर से इतना कोहरा पड़ा होता है, कुछ दिखाई देता नहीं, बाइक पे जाना है। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत भी साथ देनी चाहिए। यहाँ काम आती है किस्मत। चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा 11 या 12 को होता तो 5, 6 दिन और मिल जाते। चलिए, आप अपनी बताइएगा कौन सी डेट आई है आपकी, और साथ में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं अब। इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। ओके। द लार्ज नंबर ऑफ, ये क्या बनाया, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द, ओके, द लार्ज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स इन्वॉल्विंग पेडेस्ट्रियंस एंड टू व्हीलर राइडर्स कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल डैश, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल एक्शन। फेयर एंटरप्राइज तो नहीं होगा। टर्मिंग द डेथ्स एज एक्सीडेंट्स में इन, एक मिनट, the large number of road accident deaths involving pedestrians and two-wheeler riders calls for strong governmental action. Terming the deaths as accidents may in fact be trivializing the cause of death, because faulty road dash could also be causing, because of faulty road, uh, because of faulty road designation, faulty road design, डिज़ाइन तो नहीं हो सकता, डेसिस्ट, because faulty road destination could also be causing them in the first place। ठीक है, because faulty road destination, consider this even dash of deaths, consider this even dash of deaths caused by drawing natural disasters, railway accidents, fires and murders did not exceed the 1.46 lakh road accident deaths in 2015। Consider this even dash of deaths, even class of deaths। आगे है while two-wheeler rider death, okay, while two-wheeler rider deaths have shown a dash from 2016, incline, the spike in pedestrian, okay, एक मिनट, यहाँ पर पढ़ना होगा। लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा सजेस्ट द डेथ toll for two-wheeler riders and pedestrian have increased from 14,957 and 12,330 respectively in 2013 to this, while two-wheeler rider deaths have shown dash from 2016, the spike in pedestrian deaths during the, तो इंक्लाइन ही होगा फिर, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इंक्लाइन ही हो रहा है। ठीक है, period during the same period negates the gains। Bad driving etiquette is certainly a killer on Indian roads, and not all blame can be apportioned to bad roads, but both points to poor government dash, to poor government oversight, overdue, overt, overbridge, but both point to poor government oversight।
पता नहीं इसका। आगे देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ओके, उसको बाद में देखते हैं, छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी देखते हैं अभी। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद द फ्रेज और इडियम हाईलाइटेड। ओके, if everyone chips in we can get the kitchen painted by noon. If everyone helps, I have to hand in my essay by Friday. I have to submit. We have to work out the total cost before we buy the house. We have to estimate, attribute, capitulate, escape. I don't think I can put up with 3 small children in the car. I don't think I can tolerate 3 small children in the car. In the following sentences, 4 parts. Okay, companies thought putting millions of dollars into research and development. Companies thought putting millions of dollars into research and development were risky and stuck to safer revenue streams. Companies thought putting millions of dollars was होगा ना, क्योंकि thought singular है, I think यही होना चाहिए. A few ways in which people can prevent winter depression includes ensuring a healthy and balanced diet. A few ways in which people can prevent winter depression can be prevented from, नहीं होगा, can be prevented from winter depression includes. ओके, तो इसे देख लेते हैं. young women in general are more likely to suffer of nutritional deficiencies than young men because of their reproductive biology. Young women in general, ठीक लग रहा है, are more likely to suffer of nutritional deficiencies than, भी ठीक है, young men because of their reproductive. Suffer from होगा, I think. Food is a social experience, but the loss of a partner or family and eating alone affect the sense of pleasure taken from eating. Food is a social experience, but the loss of a partner or family and eating alone affects the sense of, पता नहीं यार इसका. Home to one of the most impressed collections of naturalistic books and scientific journals in Africa. It served nearly 100 staff members working at the Amani Hill Research Station. Home to one of the most impressed collections of naturalistic books and scientific journals in Africa. It served nearly 100 staff members. सही लग रहा है ये. इसे देखते हैं. द फॉलोइंग क्वेश्चन ईडीएम. ओके, द प्रोसिक्यूशन ब्रॉट फोर्थ अ लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम. द प्रोसिक्यूशन क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड, क्रिएटेड होगा आई थिंक. द प्रोसिक्यूशन ब्रॉट फोर्थ अ लॉट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम.
The minister brushed off the criticism. The minister brushed off the criticism. Ignored. The opposition party called for the minister's registration after the scandal broke. The opposition party called for the minister's resignation. Asked. The world will keen. Okay, grammatically only one word will be appropriate. Okay, the world will keen watch how the world will keenly watch how young and inexperienced leader tackles issues like refugee crisis and the threat of terrorism. If he decides to go forward in the given sentences, okay, if he decides to go forward with the policies that he and others of his ilk have proposed, it will lead to even more dissatisfaction among the working class, which may dash towards the right. which may छोड़ो यार इसको, ये करते हैं अब जल्दी से, पैराग्राफ करते हैं पहले. Well as I was saying, the emperor got into bed. Chevalier says he to his valet, let down those window curtains and shut the casement before you leave the room. Chevalier did as he was told, and then taking up his candlestick, departed. In a few minutes, the emperor felt his pillow become rather hard, and he got up to shake it. As he did so, slight rustling noise was heard near the bed head. His Majesty listened, but all was silent as he lay down again. Scarcely had he settled into a peaceful attitude of repose when he was disturbed by a sensation of thirst. Lifting himself on his elbow, he took a glass of lemonade from the small stand which was placed beside him. He refreshed himself by a deep draught. As he returned the goblet to its station, a deep groan burst from a kind of closet in one of the apartment. Okay. Why did the emperor wake up? Well, I was saying, the emperor got into bed. Traveler says he to his valet, let down these window curtains and shut the casement before you leave the room. Chevalier did as he was told, and then taking up his candlestick departed. In a few minutes the emperor felt his pillow become rather hard. He got up to shake it. As he did so, a slight rustling noise was heard near to bed head. His Majesty listened, but all was silent as he lay down again. हाँ, पिल्लो हार्ड हो गया था उसका. Refer to line His Majesty listened, but all was silent as he lay down again. To whom does His Majesty? Emperor. To whom does His Majesty? Emperor को कहते हैं मेरे आका. What obscured the three wax tapers which burned over the threat produced no other effect than a short, sharp laugh. Dead silence followed. Emperor started from his couch, hastily throwing a chamber over a chair. Courageously, as open door something rustled, he sprang forward. So no soul or even substance appeared. It was evident, proceeded from the feeling cloak which had been pegged from the door. He ashamed of returned to just as once more to close his eyes. The light of three wax tapers which burned in a silver branch over the mantel was suddenly darkened. What obscured the three? He looked up. A black opaque shadow obscured it. As per the passage, which of the following statement regarding the spectre who spake the Napoleon is true? Okay, तो ये है he refreshed himself.
Puhi explained Napoleon. Okay. It was but an ocular delusion, was it? Whispered a hollow voice in deep mysterious tone close to ear. Was it a delusion? Emperor or France, no, although hast hard a sad farewell eyes. It dressed in a blue stout edge with gold lace. Okay. यहाँ पर लिखा गया है कहीं इट वोर अ ब्लैक कार्वेट वेरी टाइटली, गलत है पहला, हमको ट्रू बताना है ना। इट वोर अ ब्लैक कार्वेट वेरी टाइटली अराउंड इट्स नेक, ये तो ठीक है। ही हैड ब्लड शॉट आइज, द काउंटर द ऑयल वॉज ग्लेज्ड एंड ब्लड शॉट। ओके, तो सेकंड और थर्ड है। It wore a black cape very tightly and confined by two little sticks placed behind each other. He had bloodshot eyes, and the tongue protruded from between the teeth, and the eyes was glazed and bloodshot. तो पहला ठीक तो नहीं। It dressed in a blue stout gold lace. Pooh, it was an ocular delusion. कैसा यार पैराग्राफ है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, समझ नहीं लग रहा है। Was it a delusion? Emperor of Reason, no, although heard say falling awake, Lily follow Napoleon as the voices from a tail thin man dressed in a blue shirt out. Okay, देखिए सभी है। आगे है which of the following is the closest meaning to the word capability? Capability power होगा, फिर determination, frail, momentous, random, power ही होती है capability। Which of the following is opposite meaning of opaque? Opaque का opposite meaning होता है transparent। ओके, तो अब इसको देखते हैं। Which of the following will be the first? ओके, इसको पढ़ते हैं। At Adi Chalunur, arsenic was deliberately added to copper so that alloy could be work hardened over a wide range of temperatures without fear of embrittlement. Okay. He adds that at the nearby Krishnapur, an ancient mining site was found, indicating that was not isolated. Among the ancients in India, the technique has been found only in the Indus Valley beside Arunachal, says B. Sanskrit, who was serving as the expert, concluded that metal artifacts were पहला तो ये लग रहा है, आर लग रहा है ना पहला, यार एक ठंड बहुत है। आर लग रहा है पहला मुझको कि अमंग द एंशियंट्स इन इंडिया दिस टेक्निक हैज़ बीन फाउंड ओनली इन द इंडस वैली बिसाइड्स अरुणाचल, says B. Sasiskaran, who was serving as a scientist at the National Institute of Ocean Technology when he did the research as part of the team। और पहला तो यही लग रहा है, आर। आगे है which of the following will be the second sentence? Add essential arsenic was deliberately added to a copper so that alloy could be work hardened over a wide range, ठीक है, of temperatures without a fear of embrittlement. He adds that at the nearby Krishnapuram too, an ancient mining site was finding, indicating that this was not an isolated activity. Among the ancients in India, the technique has been found only in Indus Valley. Beside Arthur says Beeson, who was serving at Arjun, यही होगा, फिर यही कनेक्ट हो रहा है उससे। He adds that at the nearby Krishnapuram too, an ancient mining site at Adichanallur, arsenic was deliberately added to the copper so that the alloy could be work hardened over a wide range of temperatures without fear of embrittlement. The expert concluded that metal artifacts were made here until the 8th century AD.
मुझे तो लग रहा है यार ये गलत ना हो जाए, फिर सारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पहला तो ठीक लग रहा है, अमंग द एंशियंट टाइम, तो आदम चुनियर में आदम चनलोर पता नहीं कैसा नाम है, उसमें ऐसा हुआ था। ठीक है। द एक्सपर्ट कंक्लूडेड दैट द एक्सपर्ट ठीक है कंक्लूडेड दैट कि मेटल आर्टिफैक्ट्स वर मेड हेयर अंटिल द 8th century AD. He adds at the near Krishnabom too, an ancient mining site was found, indicating that this was not an isolated activity. The expert concluded that metal ऐसा लग रहा है यार मुझको, देखा जाएगा फिर। गलत तो गलत सही, फिर क्यों ये जहाँ तो पूरा गलत होगा या फिर ये नंबर बढ़िया कर देगा। सब अब पैरा जंबल पर डिपेंड करता है यार, पैरा जंबल आना ही नहीं चाहिए वैसे तो प्रीलिम्स में। मेंस में डालो ना इसको, पीओ में डालो, क्लर्क में क्यों पैरा जंबल घुसा देते हो। कोई बात नहीं, अब देखते हैं अगला। न्यूमेरिकल एबिलिटी देखते हैं, पहले छोटे ही करते हैं। ये तो ×1 है, ठीक है, ये ×2, ये कितना ×4, ये ×4 नहीं है, ये 6 चौकस 24, 4 छिके 24, 4 3 12 और 2 14, नहीं ये कितना है फिर 136 का जो वो कितना होता है 136 का आधा, तो वो होगा 60 होगा फिर। 6 8 14, 3 6 9 और 1 10, 1.5 होगा ना यहाँ पर, इंटू 204 और 340, तो इसका कितना होता है 102 6। इसको बाद में देखते हैं, ये देख लेते हैं पहले। पहले कितना हुआ 13 हुआ ना पहले, फिर 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 2 26, इसका पता नहीं, इसका भी नहीं पता। ये कितना 8 में से 3 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65, तो 39 प्लस हुआ 162 में 11 6 तो 9 10, 201 आ जाएगा इसका। आगे है 321 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, प्लस 16, तो 25 होगा। 1 5 6 5 2 7, 376। इसको देख लेते हैं, ये पहले है 9 में से 5 गया 4 14, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 9 में से गया 8, ठीक है, ये 20 है तो ये 22 होगा, तो ये 143 आ जाएगा। गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना कोई, 3 2 5, 145 आएगा, देखा नहीं नहीं 20 हुआ ना यहाँ पर, तो अब 22 होगा, 3 2 5 145 आएगा। ये तो मल्टीप्लाई लग रहा है मुझको, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई ही देखें हम इसको, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई देखे 3 3 9 9 3 27 नहीं बन रहे ना ये, तो +2, ठीक है, ये कितना है प्लस का 6, ये कितना है 22, ये कितना है 8, 11 में से 3 गया 8, 88, 1 3 9, इसको 1 2 3, 1 3 3 3 3 9 3 27 भी नहीं हो रहा है ये, बाद में देखते हैं इसको भी। ये है given below is the information regarding the number of shoes in 5 different shops. Okay, total number of shoes in each, number of rubber shoes दिए गए हैं और number of leather shoes, तो ये कितने हैं 50 55 60, नहीं ये कितने 55
ये कितना का डिफरेंस है, 15 का है, 60 हो गया, ठीक है 75। ये डिफरेंस मेन है ना, 90 में से 45 और 9 का डिफरेंस है बेसिकली ये। ओके, ये 54 है, ये 63 है, ये 72 है, ये 81 है। तो इसे बना लेते हैं फिर, ए बी सी डी और ई। ये हो गए रबड़ वाले शूज़ और ये हो गए लेदर वाले शूज़। रबड़ वाले पहले देख लेते हैं, 90, बी में कितने हैं, ये होगा 54, 4 9 63 और 72, ये कितने हैं 99, ठीक है। ये कितने हैं 45, ये कितने हैं 99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108। लेदर वाले देख लेते हैं अब, लेदर वाले ये 54 है, इसमें इसमें कितने हैं 81, ठीक है। इसमें कितने हैं फिर 54 हो गया, यहाँ पर 63 और 9 72, ये कितने हैं 99 और 108, ये कितने हैं 63। अब बनाते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रबड़ शूज़ इन शॉप ए एंड सी। ए और सी में रबड़ शूज़ कितने बन गए फिर 199, टू द नंबर ऑफ लेदर शूज़ इन सी एंड डी। तो 2 8 10, 10 8 और 18 हो गया फिर। अब इसको किस पर काटेंगे, 3 पर, 3 छिके 18, 3 3 9 60, अभी और कट जाएगा 21:20 आ जाएगा इसका। आगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ शूज़ इन शॉप ई। ओके, तो इसमें कितने 8 3 11, 11 और 6 17, एंड नंबर ऑफ लेदर शूज़ इन बी। लेदर शूज़ इन बी 0 90। आ गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन शॉप डी। 5 8 13 15, ठीक है, एंड 62.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शूज़ इन शॉप ए। 62.5 मीन्स 12.5 होता है ना, 8 होता है, 6/8 और 144, 8 1 8 64, 88 का कितने होता है 108। डिफरेंस देखना है ना, नहीं वो देखना है, 3 8 11 तो 261 होगा इसका। अगेन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लेदर शूज़ इन ऑल 5 शॉप्स। 4 1 5 2 7 8 15, 3 18, ठीक है, 6 8 14 7 21, 21 और 6 27, 303 378 आ गया। इसका क्या देखना, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लेदर शूज़ एंड टोटल नंबर ऑफ शूज़ इन ए। तो 373, 144, 4 3 234। If total cost price of all shoes in shop A is rupees 800 and each rubber shoe, each leather shoe was sold at 5 and 8 respectively, then what is the total profit। तो 800 ये हो गया, ठीक है। रबड़ शू जो है वो 5 रुपये में बिका तो 450, ठीक है। ये 8 रुपये में बिका तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 2 8 8 882, तो 82 का प्रॉफिट होगा फिर। ये बाद में देखते हैं इसको भी बना ले, इसको भी बाद में देखते हैं, अभी इनको देखते हैं पहले। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का क्यूब 729, उसमें 21 जोड़े 10 5 750, ठीक है। अब इसको पहले 6 से अगर करेंगे, 6 से कम 6 तो 6 2 द 12, 6 5 द 30, 125 आ गया। 80 घटा देंगे 5 45 आ जाएगा इसका। ये है 12/21 और 3/7, अगर 21 ही मान लें इसको, ये 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 9, तो 21/21 एक ही आ जाएगा 33। 257 में 33 प्लस करेंगे 10 9 290,
इसको 58 से अगर हम करें तो फिर कितना आ सकता है? 58, 5 अट्ठे 40, 5 5 25, हाँ 5 पर आ जाएगा ये। आगे है 172, 206 और 32। 2 6 8 2 10, 8 3 11, 2 2 4, ठीक है। 405 अट्ठे 40, 82 आ गया। 180 में से 82 निकालेंगे तो 98 आ जाएगा। ये देखते हैं 23 चौके कितना होता है? 92। 208 जोड़ेंगे तो 10, 10 300 आ गया पूरा। तो ये 30 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। आगे है 25% ऑफ 12 का स्क्वायर 144, मतलब 1/4 और 144। 4 तिये 12, 4 छिके 24, 36 और 36 72। 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 18 पंजे 90। आ गया 12% ऑफ 500, तो ये हो गया हमारा 60, 64, 124। 124 को करेंगे तो 62 आ जाएगा ये। आगे है 132 डिवाइडेड बाई 6। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 डिवाइडेड 22 एक्स। ओके। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। इसमें 6 जुड़े तो 330। 22 से करेंगे तो 22 एकम 22, 22 पंजे 110, 15 आ गया इसका। आगे है 12 इंटू 16, 12 शीक 72, 12 एकम 12 और 7 19। इसमें से 58 जोड़ेंगे तो 10, ये 15, 250 आ गया। 250 का 36% अब करना है तो 9/25, 10, 90 आ गया ये। ठीक है, 90 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। आ गया 45% ऑफ 300। 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 135। ये हो गया 39। ठीक है, 5 9 14, 3 3 6 1 7, 174। 29 शी का 174 होते हैं आई थिंक, शे नहीं। हाँ, आगे इनको देख लेते हैं, पेज अब बदले लेते हैं। यह है 17 इंटू 24 और 16, तो इसका क्या होगा फिर? 17 24 16, 16 तो ये 48 होता है ना इसका। तो ये आ गया 34। ठीक है, ये आ गया 30। तो ये 64 और 48। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 152 और 19। 19 अट्ठे 152 होता है ना, 19 अट्ठे 24 आ गया ये। 2 32। ठीक है, 32 में से 20 गया तो 12 आ जाएगा। ये है 39 है नीचे, ऊपर है 18 और 12। 8 18 2 20 और 30, 39 इंटू 65। 13 तिया 39, 13 पंजा 65, 10 50, सॉरी 10 और 5 50 और 25 कितने हो जाएंगे? 75। ये है 104 26, 36 इंटू 600। ठीक है, ये 104 और 26 नीचे आ जाएगा। अब इसको, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। 4 9 36। अब इनको देखते हैं। देयर आर 3 होटल्स है, ओके, ए बी एंड सी। ईच होटल हैज़ 3 काइंड्स ऑफ वर्कर्स। ओके, टोटल होटल्स कितने हैं? 3 होटल हैं, 3 काइंड्स ऑफ वर्कर ही हैं इनके पास। ठीक है, शेफ्स हो गए, सर्वर्स हो गए और क्लीनर्स हो गए। होटल बी हैज़ 316, होटल B has 316 servers. The average number of chefs in given 3 hotel is 350. तो पूरे कितने होंगे फिर? 1050 होंगे ना। 35 या 105 होते हैं। होटल C has 404 servers. Okay. Sum of the number of cleaners in hotel A and B is 640. तो इन दोनों का सम 640 है।
Some of the cleaners of hotel A and B section. Hotel C has 12 less cleaners than होटल ए। तो होटल ए में ए से 12 कम है। होटल सी हैज़ 12 less cleaners than होटल ए। द सम ऑफ नंबर ऑफ शेफ्स एंड सर्वर्स इन होटल ए इज 760। ओके, सम ऑफ शेफ्स, ठीक है, सम ऑफ द नंबर ऑफ शेफ्स इन होटल, द सम ऑफ नंबर ऑफ शेफ्स इन होटल, शेफ्स एंड सर्वर, शेफ्स और सर्वर होटल ए में कितने हैं? 760। द नंबर ऑफ शेफ्स इन होटल बी, ओके, द सेम एज द नंबर ऑफ सर्वर्स इन होटल ए। तो शेफ्स ऑफ बी और सर्वर्स ऑफ ए इक्वल है। होटल सी हैज़ 142 वर्कर्स इन टोटल। होटल सी हैज़ 142 वर्कर्स इसके पास टोटल। द नंबर ऑफ शेफ्स इन ए is 150% of the number of cleaners in B. Okay, number of chefs in A is 150% of the number of cleaners in B. तो अगर ये 3x है, 150 है, 150% है, तो ये 2x होगा फिर। इसको कैसे कर सकते हैं हम? मुश्किल है यार ये तो थोड़ी सी। शेफ्स प्लस यार ये तो मुश्किल थोड़ी डाल दी इन्होंने, कोई यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 3x 2x 640, ये पूरे 142 है, ये 1050 है। टाइम लग जाएगा, इसको छोड़ो यार। ये देख लेते हैं अब। ये तो हुआ नहीं ना हमसे। शट यार, 68 इंटू 2 है, ये इंटू 1 है, सॉरी। ठीक है, ये इंटू 2 है। 2 8 16, 2 6 12 और 1 13। ठीक है, ये हमने देखा 2.5 है, ये 2.5 नहीं 1.5 है। 136 और 68, 6 8 14, 3 6 9 और 1 10, 204, 1.5 लगा लेते हैं। चलो, तो अब कितना होना चाहिए? ये 136 और 204, ये तो ठीक है। 204 और 340, पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 10 में से 4 गया 6, 136 आ जाएगा इसका। 136 का डिफरेंस है, तो ये कितना है फिर? पता नहीं है, छोड़ो इसको। अब अर्थमेटिक ही देख लेते हैं। ये तो धोखा दे गई भाई केसलेट। इसको बाद में अच्छे से सॉल्व करेंगे। वैसे एच कैन कम्प्लीट 80% ऑफ वर्क इन 20 डेज। एच जो है वो 80% काम जो है, मतलब 4/5 काम है जो 20 डेज में कर देता है। तो पूरा काम कितने में करेगा? 25 दिनों में। जी कैन कम्प्लीट द वर्क इन लोन 22 डेज। ठीक है, तो इनका क्या आ जाएगा? 25 चौका 100, 25 5 125, इनका कितना आएगा? 220। 25 और 22 का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एच कैन कम्प्लीट 80% ऑफ अ वर्क इन 20 डेज। 80% 4/5 होता है, 20 डेज में करता है, 5 दिन लगे, तो 25। एंड जी कैन कम्प्लीट द वर्क अलोन इन 22 डेज। ओके, तो 25 इंटू 22 कर लेते हैं, ये 22 और ये 25। इफ जी एंड एच स्टार्टेड द वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज आफ्टर स्टार्टिंग एच लेफ्ट। ओके, 25 और 22, और इन दोनों ने 22 और 25 7 5 दिनों के लिए काम किया। 5 5 25। ठीक है, बाद में ये काम को रोककर चले गए। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 13,500, 135
और 20 ने 215 किए। सी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ्स स्टार्टिंग विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ओके, तो इन्होंने पूरे 24 महीने, इन्होंने भी 24, इसने सिर्फ 18 महीने किए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द, अब देख लेते हैं इसको। 3 × 18, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, तो ये आ गया 3, 4 और 4, और कुछ कटेगा? 2 1 3 5 8, 1 3 4 5 9, और कुछ नहीं कटेगा आई थिंक ना। तो 135 × 4, 215 × 4 और x × 3। टोटल प्रॉफिट कितना है? 6400। आउट ऑफ विच ए शेयर इज दिस, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? ओके, 1620 इसका है। 4 पंजे 20, 4 तीये 12, 4 एकम 4 और 1 5, 1620। एक का शेयर 6 है, तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी? सी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? सी का इन्वेस्टमेंट, एक का अगर 6 है तो 18x है। ठीक है, 6450 में 1620 घटाएंगे 3 8, लेट हो गया यार मैं फिर से। 4830, 18 दूना 36, शट यार, केसलेट ने काम खराब कर दिया। क्या ही कर सकते हैं, केसलेट इतनी मुश्किल डाली हुई है। अब इसको देखते हैं, इस पर अभी छोटे हो जाएंगे ना, पेज बचाते हैं। शट यार, क्वांट का तो वैसे ही बुरा हाल है, आज तो ज़्यादा हो गया। इसको बाद में देखते हैं, पहले छोटे कर लेते हैं इस पर। हाउ मैनी सच वॉवल्स इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल। सिंबल के बाद वॉवल चेक कर रहे हैं, सिंबल के बाद वॉवल नहीं है, सिंबल के बाद वॉवल 1, ठीक है, सिंबल के बाद वॉवल 2, ये आई है ना आई थिंक, हाँ, सिंबल के बाद वॉवल 2, सिंबल के बाद वॉवल 3, सिंबल के बाद वॉवल 4, सिंबल के बाद वॉवल 5, सिंबल के बाद एक 5 ही है फिर। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज बिटवीन द 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 3 2 5 कॉपीराइट है। एंड 6th एलिमेंट, ओके, 5th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 6th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 और 6 ए, इनमें से क्या बताने हैं? लेटर्स बताने हैं ना, कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11। In the given series, how many letters are there between the third vowel from the right hand? थर्ड वॉवल फ्रॉम द राइट हैंड पूछा गया ना, एक, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा ई हो गया, जिसके बाद में डॉलर है। और 6th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6th कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 और 6 के, इनमें से क्या बताना है? लेटर्स है ना। तो लेटर्स हैं 1 2, एक ही है, सिर्फ एक ही है यार। इन द गिवन सीरीज हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द थर्ड वॉवल फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड वॉवल राइट हैंड से एक, तो पहला तो ये हुआ, ठीक है, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। एंड 6th कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6th कॉन्सोनेंट 1 2, ठीक है, 3 4 5 5 और 6, तो इनमें से एक ही है फिर। नंबर ऑफ लेटर्स एक ही है यार, ये भी बाद में देखते हैं, ज़्यादा बड़े दिए गए लगता है। इसको कर सकते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। ये देखते हैं, ओनली प्लास्टिक आर लिक्विड, ओनली प्लास्टिक आर लिक्विड मीन्स ऑल लिक्विड आर प्लास्टिक, और इस पर लगी रेस्ट्रिक्शन। सम प्लास्टिक आर सॉइल, ऑल सॉइल आर आयरन। सम आयरन आर लिक्विड, कभी भी नहीं सम प्लास्टिक आर आयरन, सम प्लास्टिक आर आयरन, हाँ। ऑल लिक्विड आर प्लास्टिक, और लिक्विड आर प्लास्टिक, हाँ, ये बोल सकते हैं। ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड,
ये रहा। आगे ओनली अ फ्यू मैटर आर लिक्विड, कुछ ही मैटर हैं लिक्विड हैं जो, ओनली अ फ्यू मैटर आर लिक्विड, ऑल फ्यू नो लिक्विड आर सॉलिड, ठीक है। ऑल अ फ्यू गैस आर सॉलिड, ठीक है। ऑल गैस बीइंग लिक्विड इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकती। सम मैटर आर नॉट लिक्विड, ठीक है। सम सॉलिड आर नॉट गैस, सम सॉलिड आर नॉट गैस, ये तो कहीं नहीं बोला, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज है। आगे ओनली डीड आर रजिस्टर, तो ऑल रजिस्टर आर डीड और एज पर दी रेस्ट्रिक्शन, नो ओरिजिनल इज डीड, ठीक है। ऑल पेपर्स आर डीड, ऑल पेपर्स आर डीड, ऑल ओरिजिनल कैन नेवर बी रजिस्टर, ठीक है। सम डीड आर नॉट पेपर्स, सम डीड आर नॉट पेपर्स नहीं बोल सकते, नो पेपर्स आर रजिस्टर, ये भी ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ये रहा, नहीं नहीं ये नहीं रहा, फर्स्ट और थर्ड है ना यार, हो जा नीचे। दोबारा देखते हैं इसको, क्या है। ओनली डीड आर रजिस्टर मीन्स ऑल रजिस्टर आर डीड और इस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई। ऑल पेपर्स आर डीड, पेपर से यहाँ आ गया, ये डीड है, ठीक है। नो ओरिजिनल इज डीड, ओके। अब देखते हैं, ऑल ओरिजिनल कैन नेवर बी रजिस्टर, बिल्कुल ठीक है। सम डीड आर नॉट पेपर्स, कुछ डीड जो पेपर्स नहीं है, ये भी ठीक है। नो पेपर्स आर रजिस्टर, ये भी ठीक है। इनको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस इन द टू मेक द एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू, ओके। वी से बी जो है वो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, वी से बी, तो वी से बी ये भी आ सकता है। अगर इसको डालेंगे तो एफ से एस भी हो जाएगा, ठीक है ना, यही है फिर। आगे है, इन ऑर्डर टू मेक द पी टू डब्ल्यू डेफिनेटली ट्रू, पी से डब्ल्यू देखना है ना, पी से डब्ल्यू, पी से डब्ल्यू देखेंगे तो दोनों के दोनों सिंबल जो हैं वो इस तरह से आने चाहिए, हाँ ये भी चल जाएगा वैसे तो। पी से डब्ल्यू, ओके। हाउ मैनी सिंड्रोम, 19, एक्स वाई जेड 25, 14, 4, 18, 15, ये हो गया हमारा 13 और ये 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, दोनों में देखना ना, 26, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक ही है। ओके तो अब पजल सी भरी पड़ी है इसमें। 7 बुक्स हैं, अरेंज इन 7 डिफरेंट डेज, मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ध्यान से करेंगे और जल्दी करेंगे। डी इज केप्ट ऑन थर्सडे इन वन ऑफ द, डी इज केप्ट ऑन थर्सडे, वन बुक केप्ट बिटवीन डी एंड बी। 2 मिनट। 7 बुक्स हैं, अरेंज इन 7 शेल्फ्स, पी क्यू आर एस टी वी, ओके। 7 बुक्स हैं, अरेंज इन 7 शेल्फ्स, पी क्यू डी इज केप्ट ऑन थर्सडे इन वन ऑफ द शेल्फ्स, तो शेल्फ्स नाल बना लेते हैं एक बार, ठीक है। डी इज केप्ट ऑन द शेल्फ्स इन थर्सडे ऑन वन बुक इज केप्ट बिटवीन डी एंड बी विच इज अरेंज्ड इन क्यू। E is kept immediately after B. E is kept immediately after B. 3 books are kept between E and the book which is arranged in V. 1, 2, 3, V यहाँ आ गया, 1, 2, 3, V यहाँ आ गया। F is kept in T just after one which was arranged in P. F is kept in T. F जो है वो T shelf में है and just after the one which is kept in P, ठीक है। आगे है, D is not arranged in P. D जो है वो P में अरेंज नहीं है,
तो फिर यही केस बना F और TP। इस केस में भी P जो है वो यहाँ पर नहीं है ना, तो यही केस बना फिर F और T और P। The book arranged in U is kept just after the book arranged in S. The book arranged in U is kept just after the book arranged in S. तो इस केस में तो ये कौन सा है, V है, ये V है ना, तो S और U यहाँ आ गया, इस केस में S और U यहाँ आ गया। A is kept before D but after C. A is kept before D but after C. तो ये बन गए। Which of the following book is kept on Monday? C. Book is arranged in PQRS। R पर होगी फिर। How many books are kept after A? 1 2 3 4। Book is kept on Sunday। यार हाथ नहीं चल रहे एक। अब इसको देखते हैं। ये इन एन एग्जामिनेशन 6 स्टूडेंट्स हैं गेट डिफरेंट मार्क्स। ओके, ए गेट मोर मार्क देन एफ, ई गेट मोर मार्क देन ए एंड बी। ओके, बी गेट मोर मार्क देन ए एंड एफ। ओके, B get more mark than A and F. C get more mark than F but less than A। तो यहाँ पर मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। B जो है वो E बड़ा है ना, सबसे लग रहा है, हाँ E बड़ा है। कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। E सबसे बड़ा लग रहा है। A जो है, लेकिन B A से भी बड़ा है और F से भी बड़ा है, तो B यहाँ आ जाएगा। और A F से बड़ा है, F यहाँ आ जाएगा। F से भी बड़ा C है, ठीक है। F यहाँ आ जाएगा, फिर सभी होगा ना। A F से बड़ा है, ठीक है। E A से बड़ा है, ठीक है। E B से भी बड़ा है, ठीक है। B A से बड़ा है, ठीक है। B F से बड़ा है, C F से बड़ा है, A C से बड़ा है, ठीक है। D gets less marks than E। D gets less mark than E। ओके, बट मोर मार्क्स देन B। तो मुझे लगता है D gets less mark than E बट मोर मार्क्स देन B, तो D यहाँ आएगा फिर। A gets 45 marks, ओके। D gets 60 marks, बट कैन पॉसिबल मार्क ऑफ E, तो ज़्यादा ही होंगे 65। Who gets लीस्ट मार्क्स, F। वे हो जा। Who belongs to, दो ही थे यार इसके। Who belongs to India, 6 persons हैं, like different mango in the USA। ओके, तो बना लेते हैं इसको, बन जाएगा शायद से। तो कौन है, अमित, ठीक है। अरमान, अर्पित, अरुण। यार एक ठंड की वजह से हाथ नहीं काम कर रहे हैं। अमन और अरुणा। इसको ही बढ़ा लेते हैं आगे। इसमें भी वेरिएबल हैं दो दो। डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। अर्पित बिलोंग्स टू इराक एंड लाइक्स लीची। अर्पित, ये अगर फ्रूट है, ये कंट्री है, ये फ्रूट है, ये कंट्री। अर्पित बिलोंग्स टू इराक एंड लाइक लीची, ठीक है। ओनली अमन हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया एंड ओनली अमन हु डज नॉट बिलोंग टू इंडिया एंड अरुणा लाइक्स ग्रेप्स। तीन ही तरह के है, ओके। ओनली अमन जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अमन जो है वो इंडिया का नहीं है। और बोला गया है ओनली अमन एंड अरुण ग्रेप्स, ओके। अमन और अरुण को ही ग्रेप्स पसंद है, ठीक है। ये लगी इन पर रेस्ट्रिक्शन। आगे बोला गया है अमित डज नॉट लाइक मैंगो। अमित को मैंगो पसंद नहीं है, तो मैंगो पसंद नहीं है तो फिर लीची पसंद होगा, क्योंकि ठीक है मैंगो इसको पसंद होगा। अरुण डज नॉट बिलोंग टू यूके। अरुण जो है वो यूके से बिलोंग नहीं करता,
ठीक है, अरुण जो है वो यूके से बिलोंग नहीं करता। अरमान बिलोंग्स टू यूएसए बट ही डज नॉट लाइक लीची। अरमान बिलोंग्स टू, अरमान कहाँ है अब? ओके ओके, ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी ना यहाँ पर, इसको भी मैंगो नहीं, ओके मैंगो पसंद होगा। ठीक है, अरमान बिलोंग्स टू यूएसए और लीची इसको पसंद नहीं है। द पर्सन हु लाइक ग्रेप्स डज नॉट बिलोंग टू स्पेन और यूके। तो स्पेन और यूके यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, स्पेन ना यहाँ आएगा, स्पेन ना यूके यहाँ आएगा। दे ऑल्सो बिलोंग टू 6 कंट्रीज, इंडिया, ईरान। ठीक है, द क्या बोला गया था, पर्सन हु लाइक ग्रेप्स डज नॉट बिलोंग टू स्पेन और यूके। ना यहाँ पर स्पेन आ सकता है ना यूके आ सकता है। ठीक है, अरुण को यूके पसंद नहीं है, अरुण को यूके पसंद नहीं है ना, तो यूके फिर यहीं आएगा। ठीक है, और अरमान जो है वो इंडिया से, और यहाँ पर स्पेन आ गया है फिर। ठीक है, अरमान इंडिया से नहीं है तो इंडिया यहाँ आ जाएगा। यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, अमन को इंडिया पसंद नहीं है, अमन ओनली अमन हु डज नॉट, ओके अमन को इंडिया पसंद नहीं है तो इंडिया यहाँ आ जाएगा और जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। वो बिलोंग्स टू इंडिया। अरुणा, अरुण बिलोंग्स टू, अरुण बिलोंग्स टू स्पेन। सही बनी हो। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन लाइक मैंगो फ्रूट। मैंगो किसको किसको पसंद है, अरमान और अरुण को। ये जो नाम एक तरह के दे देते हैं ना, इससे प्रॉब्लम होती है। अपार्ट फ्रॉम अर्पित हु लाइक्स लीची। अर्पित और अमित को पसंद है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। अब ये बताएगा हमें हमने ठीक किया। अरुण स्पेन मैंगो, यही नहीं करेक्ट। अरमान यूएसए मैंगो। ठीक है, अमित यूके लीची, अरुणा इंडिया और ग्रेप्स। ठीक है, अमन यूके ग्रेप्स, अमन यूके और ग्रेप्स। अरुण स्पेन और मैंगो। ठीक तो है पहला, यही है फिर गलत। अब आगे देखते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स हैं ना फैमिली। कितने क्वेश्चन है इसके, 1 2 3। ठीक है, इसे ही करते हैं फिर। देयर आर 8 मेंबर्स हैं ना फैमिली। 3 टोटल मेंबर्स कितने, 8 बन जाए। ये टोटल जनरेशन्स कितनी है, 3। 4 मैरिड कपल्स हैं। एफ इज़ ब्रदर ऑफ बी। एफ जो है वो ब्रदर है बी का। एफ इज़ ब्रदर ऑफ बी। हु इज़ आंट ऑफ एच, जो आंट है एच की। ई इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ए। ई जो है वो ओनली ग्रैंडसन है ए का। ठीक है, डी इज़ मदर इन लॉ ऑफ जी। डी जो है वो मदर इन लॉ है, डी इज़ मदर इन लॉ ऑफ जी। ठीक है, सी डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। सी का कोई बच्चा नहीं है। सी एंड ए आर इन सेम जनरेशन। सी और ए सेम जनरेशन में है। देयर आर 4 मेंबर इन फर्स्ट जनरेशन। तो पहली जनरेशन में 4 मेंबर हैं। घटिया दिया गया है बिल्कुल, ब्लड रिलेशन भी। इसको करते हैं यार, 7 पॉइंट्स है, मार्क डाउन। मुश्किल दिया गया है यार इन्होंने। 7 पॉइंट्स है, मार्क डाउन पेपर। सी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ जेड। सी जो है वो 12 मीटर है ईस्ट ऑफ जेड के। विच इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ क्यू, जो 5 मीटर है साउथ ऑफ क्यू के। ठीक है, एन इज़ 9 मीटर वेस्ट ऑफ पी विच इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ डी। क्यू इज़ 7 मीटर वेस्ट ऑफ एम विच इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। अबे यार कोई लिंक तो बताओ। जेड, सी इज़ 12 मीटर जेड नॉर्थ ऑफ क्यू, ये क्यू आ तो गया ना। क्यू इज़ 17 मीटर वेस्ट ऑफ एम। क्यू जो है वो 17 मीटर है वेस्ट ऑफ एम के। ठीक है, विच इज़ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, जो 4 मीटर है नॉर्थ ऑफ डी के। क्यू आगे बोला गया है कि एन इज़ 9 मीटर वेस्ट ऑफ पी विच इज़ 4 मीटर साउथ ऑफ डी। पी जो है वो 4 मीटर साउथ ऑफ डी है। ठीक है, और जो एन है वो 9 मीटर वेस्ट है।
इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू जेड, डी विद रिस्पेक्ट टू जेड नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि थोड़ा सा कम है ना। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एन, सी और एन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है टोटल, 4 और 5 का है ना ये। 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, और ये कितना डिस्टेंस है, ये 5 का है, इस तक 5 यहाँ आ गया, तो ये 4 है, 16, 2 1 3 √41, कहाँ गड़बड़ कर दी अब। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एन, सी और एन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है, तो एक तो ये हो गया 4 और एक 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना है 12 यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ फिर कितना रह गया 5, तो ये 4 यहाँ तक, फिर ये कितना है यार, यहाँ तक 12 12 है, ठीक है, ये टोटल कितना है 9, 5 फिर 2 मिनट, 12 5 ये कितना है 9 मीटर है, तो 5 यहाँ तक 4 ही होगा फिर, पता नहीं यार इसका। अब उसको कर लेते हैं, नॉर्दर्न है, सेकंड ओ, फोर्थ टी, सेवंथ, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और एन। हाउ मेनी 4 लेटर मीनिंग फ्रॉम द राइट, ओके, तो ये टॉर्न बन सकता है, ठीक है, नॉर्थ, टॉर्न, रॉन्ट, कितने बन सकते हैं, मुझे तो लगता है टॉर्न ही बनेगा, सिर्फ एक ही लगा देते हैं, देखी जाएगी यार। रीजनिंग में भी 22 ही हुए, टोटल स्कोर कितना कम रहा, इंग्लिश ने काम खराब किया इस बार, 13.25, तो इसका मतलब वो गलत हो गया हमारा, जो हमने पैरा जंबल किया था आई थिंक वो गलत हो गया, बहुत ही कम स्कोर है यार। ये प्रैक्टिस मॉक वाले ना सारा कॉन्फिडेंस ही मार देते हैं, शिट यार। सो गाइस आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोशिश करेंगे अभी प्रैक्टिस मॉक ना लगाएं, क्योंकि क्या है कि 5 तारीख को हमारा पेपर है, अगर इस तरह के मॉक लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरा तो पूरा घटिया रहा है स्कोर, थोड़ा सा मुश्किल भी था ये, लेकिन 60 मार्क्स तो आने चाहिए थे, 60+। सो गाइस थैंक यू सो मच।